I've been wanting to become a wedding planner and thinking कैसे करेंगे? What are the things that are involved? Do I have the right experience? Do I have the right expertise? I'm here to tell you that my journey as a wedding planner didn't quite start into wedding planning. I was actually a makeup artist and I was doing bridal makeup until I made the slow shift into wedding planning. And I still do makeup. Some of the things that I want to discuss with you today and hopefully inspire the next generation of makeup artists, photographers, videographers, freshers, or anybody who's interested in event planning, wedding planning to be able to pursue their dream in wedding planning if they choose to do so. Right, first things first, do you need any particular education or certification to be a wedding planner? I am not aware as of today in the state of Arizona, which is where I am in the United States, कि wedding planning के लिए कोई certification चाहिए होता है. But definitely check in the area you are in. To the best of my knowledge, India या US दोनों में ही कोई particular certification ऐसा नहीं है जिसको कि देखकर जो है या तो आपको कोई बहुत बड़ा लेवरेज मिले और या फिर जो है इट इज अ रिक्वायरमेंट सो देन हाउ डू यू गो अबाउट एजुकेटिंग योरसेल्व्स this is the right place. There are a lot of us that are trying to provide you hands on knowledge of our own experience. So YouTube is a good place to start. Udemy and Coursera are some other places जहाँ पर कि आपको काफ़ी अच्छे courses मिलेंगे where you can go ahead and look up what are the basics of wedding planning. Another way is you go and shadow another wedding planner if they allow you to and try to gain that experience that way. मैं मेरी journey आपके साथ share करूंगी and hopefully you can find some similarities or certain things, certain pointers जो आप अपनी journey में यूज कर सकते हो. मैं प्रोजेक्ट मैनेजर थी एक बैंक में और बैंकिंग वाज माय एक्सपर्टीज एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाज माय एक्सपर्टीज. तो जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रही थी तो मेरे को ऑलरेडी मालूम था बजट्स कैसे हैंडल करना है, पीपल को कैसे हैंडल करना है, टीम्स कैसे बनानी है, स्केड्यूल्स को कैसे करना है, टाइमलाइंस कैसे करनी है. ऑल ऑफ दोस आई वाज ऑलरेडी डूइंग इन माय आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्किंग फॉर बैंक्स. तो वो चीज मुझे ऑलरेडी आती थी. एट द सेम टाइम मैं फ्रेंड्स और फैमिली को गाइड कर रही थी व्हेन दे वांटेड टू डू देयर वेडिंग इन द यूएस. मैं यहाँ पर बेस्ड थी. और अगर मैं उससे भी पीछे जाऊँ तो 2006 में व्हेन आई गॉट मैरिड माय नाउ हस्बैंड वाज इन द यूएस. अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट हैव हिज पेरेंट्स. मेरे पेरेंट्स दे वर फ्रॉम अ वेरी वेरी स्मॉल टाउन इन यूपी. तो हमारे पास वो बेनिफिट नहीं था where we had somebody older than us who could do the traditional planning. And with my husband being in the US, I actually landed up planning all of my wedding. तो मैंने first hand देखा कि क्या difficulties थी. और अगर मैं आपके साथ ऑनेस्ट हो रही हूँ, वन रीजन मैं रेकमेंड करती हूँ वेडिंग प्लानर इज बिकॉज दे आर एन एग्नोस्टिक पार्टी. इन अदर वर्ड्स, while obviously they're invested in ensuring that your wedding goes best, they don't have a history with your family members, have that touch with your family members. तो बहुत बार वो difficult conversations या decisions ले सकते हैं जो कि आप नहीं ले सकते. जिससे कि वो कह सकते हैं right after the first ceremony, we are not going to do the second one until 2 o'clock. While one of your relatives might be like, oh no, evening I have to go for this particular thing. Could you please make sure that happens in the morning? And this person might be like an important person in your family, and suddenly, everybody's busy convincing them. But अगर wedding planner होगा, तो वो काफी strategically, काफी अच्छे से बात कर पाएगा, and you wouldn't have to have those difficult conversations. So इसके लिए मैंने देखा कि हाँ, खुद से प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लानर हो तो काफी सारी चीजें काफी इजी हो जाती है. So like I was saying, मैं बैंकिंग में थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रही थी, सो ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन मुझे थी. मैं फ्रेंड्स और फैमिली की वेडिंग्स जो है ऑलरेडी उनको हेल्प कर रही थी. सम वेज आई वाज क्वाइट अवेयर ऑफ क्या क्या चाहिए होता है, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट, डेकोरेशंस, फ्लावर्स, फूड, एस्थेटिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. जब मैंने पहले डिसाइड किया दैट आई वुड बिकम मेकअप आर्टिस्ट, तो मुझे मालूम था कि मुझे ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बनना है. एंड देन एज आई वाज pursuing my journey in bridal makeup artistry, I started to very quickly like our South Asian
title. That's where my comfort zone was, that's where my talent was, that's where my resources and my clients were. तो वो मैंने जीरो डाउन कर लिया कि मुझे साउथ एशियन ब्राइडल ही करना है यूएस में। अभी वो करने के बाद जब मैं मेकअप कर रही थी तो मैंने बहुत सारे वेडिंग प्लानर्स को अप्रोच किया दैट आई वुड लव टू वर्क विद यू, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। अब मेरा एक्सपीरियंस ये था, और हो सकता है आपका भी एक्सपीरियंस हो, मे बी यू आर अ वीडियोग्राफर डूइंग वेडिंग्स और अ फोटोग्राफर डूइंग वेडिंग्स और मे बी अ केटरर हु इज डूइंग वेडिंग्स, कि जो वेडिंग प्लानर्स थे वो बीच में बहुत ज्यादा कट ले लेते थे। तो क्लाइंट को लगता था कि अरे हम इतना दे रहे हैं लेकिन हमें उतना नहीं मिल रहा था। तो मैंने बहुत क्विकली रियलाइज किया दैट आई कैन नॉट possibly work with wedding planners without undercutting my services or underpaying my artists. I didn't want to do that. तो मैंने सोचा कि मैं इंडिपेंडेंटली जाऊंगी, मैंने अपना क्लाइंट बेस इंडिपेंडेंटली बनाया। But then I also started to see a huge gap in South Asian wedding planning, and I wasn't quite satisfied with what I was seeing for the non-residential Indians or NRIs, and that's the group that I aspire to serve. तो मैंने देखा कि अरे यार नीड तो है, वी नीड गुड प्लानर्स, वी नीड प्लानर्स हु डू राइट बाय द क्लाइंट। मुझ में जो है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज भी है, आई एम फ्रॉम इंडिया, सारी जिंदगी वेडिंग्स अटेंड की है, यूएस में भी इंडिया में भी, तो वो एक्सपर्टीज भी है। सिर्फ मुझे इसको जो है एक फॉर्मेशन में डालना है, एक फ्रेमवर्क बनाना है। तो अगर आप जो है केटर हो, वीडियोग्राफर हो, लाइटिंग आर्टिस्ट हो, या आप फ्रेशर भी हो, तो सबसे पहले आप अपना जो की पॉइंट है, क्या आपको आता है ना, उसको सबसे पहले डिसाइड करो। अगर आप लाइटिंग में हो तो हो सकता है कि आपको जो एस्थेटिक्स बेटर आते हो, आपको आता होगा कि ओके आई एम वेरी गुड एट गेटिंग फिजिकल स्ट्रक्चर्स, मंडप्स एंड थिंग्स लाइक दैट क्रिएटेड, बिकॉज ऑलरेडी मैं उसकी लाइटिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को ऑलरेडी मालूम है कि जो है मुझे ये कैसे क्रिएट करना है। मे बी आई नीड अ लिटिल बिट मोर सपोर्ट विद हेयर एंड मेकअप बिकॉज दैट्स नॉट माई एक्सपर्टीज एट ऑल, राइट। तो आप पहले डिसाइड करो क्या आप खुद कर सकते हो और क्या आपको बाहर से। एक बार आपने वो डिसाइड किया कि आपकी एक्सपर्टीज क्या, जैसे मेरे केस में क्या था कि मुझे बिजनेस बैकग्राउंड था, मुझे प्लानिंग बैकग्राउंड था, लेकिन मुझे बाहर से क्या लाना पड़ा, मुझे बाहर से लाने पड़े पीपल हु कुड सेट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मी, लाइक अगर हम लोग मंडप कर रहे हैं तो बड़ा सा मंडप कैसे सेटअप करना है, वो मुझे वेंडर्स लेके आने पड़े। मेरी खुद की टीम थी हेयर एंड मेकअप की, आई वॉज नॉट वरीड अबाउट दैट। फिर मैंने पार्टनरशिप की वेन्यूज के साथ, मैंने पार्टनरशिप की होटल्स के साथ, मैंने बहुत सारे एयरबीएनबीज को कांटेक्ट किया बिकॉज मुझे मालूम था कि मेरे कुछ क्लाइंट्स जो है दे वुड आल्सो वांट टू यूज एयरबीएनबीज, दे आर कमिंग अ डे अहेड और डे लेटर एंड सो ऑन। धीरे धीरे ये जो पार्टनरशिप्स थी ये जो है बिल्ड होती गई और ये मेरे वेंडर्स बनते गए। आई वाज सिटिंग इन द राइट रूम्स, हैविंग द राइट कॉन्वर्सेशंस, एंड देन forums like this YouTube where I'm able to also articulate my services and I'm able to reach a wider audience, I started to get more clients. If you are sitting there, so here are the 5 tips I will give you. Number 1, go ahead and figure out how strong you are with planning. किसी का बर्थडे ऑर्गेनाइज करो, खुद का ग्रेजुएशन पार्टी ऑर्गेनाइज करो, खुद का 50th बर्थडे ऑर्गेनाइज करो, जो भी है फिगर आउट करो कि तुम्हारी प्लानिंग स्किल्स कैसी है, बिकॉज वो बहुत ही जरूरी है। और अगर उसमें गैप्स लगे तो गो हायर अ मेंटर और अ ट्रेनर टू जस्ट हेल्प यू विद योर प्लानिंग स्किल्स। सेकेंड थिंग जो है ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स पे वर्क करो। ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स से क्या मतलब हुआ, चलो तुम्हें प्लानिंग तो आ गई कि हाँ ठीक है जो है डे 1 डे 2 ये करेंगे, या सबसे पहले जो है अपना टेंट वाला आएगा, उसके बाद केटर आएगा, चलो प्लानिंग आ गई। अभी ऑर्गेनाइज इन सबको साथ में कैसे लेके आना है, उनके साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं, इन सब के वाउचर्स को कहाँ रखना है, पेमेंट कैसे होगी, हमारे इनवॉइसेस कैसे जाएंगे, ये ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, ये बैक एंड स्किल्स है। ये क्लाइंट कभी नहीं देखता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे क्लाइंट के लिए भी। तो उस फ्रेमवर्क को जो है डिफाइन करो। देन form a team, your team internally, which is you yourself as a coordinator or a planner, plus people will be helping you. Most likely जो है एक वेडिंग में एक आदमी नहीं कर सकता है, you need, बहुत छोटी भी वेडिंग है तो तुम्हें कम से कम 3 से 4 लोग चाहिए, और बड़ी वेडिंग्स में आई वुड से यू वुड हैव अ टीम ऑफ 18 to 20 people covering different things. So एक टीम को फॉर्म करो and get the right people onboarded, get the right contractors, the full timers, and there's a whole different art to it. वो फिर कभी जाएंगे उस बीच में। फिर जब तुमने ये 3 चीजें कर ली, राइट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, गेटिंग अ टीम टुगेदर, देन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करो। जैसे कि मैंने बोला कि तुमने शुरू में जो है एक छोटी सी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की, देखा मेरी प्लानिंग स्किल्स कैसे किए हैं, उस पर वर्क किया, फिर तुमने ऑर्गेनाइज किया, फिर तुमने टीम्स बनाई, फिर जो है एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करो किसी बाहर के आदमी के साथ।
where maybe there's a wedding happening where it is in a single location which is a path of least resistance, वहां पे तुमको बहुत ज्यादा मैनेज नहीं करना है, इट्स नॉट एन आउटडोर्स वेडिंग। देखो कि तुम्हारा जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो कितना वर्क करता है, एंड बी ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट, गिव देम द राइट इन्फॉर्मेशन दैट आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट बट आई वांट यू टू नो, आई वांट टू डू गुड बाय यू। I can be the best wedding planner in the world if I plan the best wedding for you. So convince them, and if they do get convinced, then it's not easy, but trust me, there are people who will be convinced. उनको convince करो, give them I wouldn't say deal, मतलब deal is, I in my dictionary is not the best word, but give them better value. फॉर एग्जाम्पल यू कुड से कि मैं आपकी वेडिंग प्लानिंग 1 महीने पहले शुरू करूंगी, एंड हम ये चीजें करेंगे और मेरे ये कॉन्टैक्ट से जो भी आपका यूएसपी है उनको सेल करो। उसके बाद उससे जो है लर्निंग्स है उससे इंस्पेक्ट एंड अडेप्ट करो, वो लर्निंग्स को तुम्हारे नेक्स्ट इवेंट में जो थोड़ा और बड़ा होगा फिर थोड़ा और बड़ा, एंड गॉड विलिंग समडे यू आर गोइंग टू डू वेरी बिग वेडिंग प्लानिंग। बेसिकली फंडा वो ही है कि पहले जो है अपनी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स पे वर्क करो, टीम बनाओ, उसके बाद उसको टेस्ट करो, और टेस्ट करने के बाद जो चीजें तुम्हें इम्प्रूव करनी है उन्हें धीरे धीरे इम्प्रूव करो। क्या मत करो, द डोंट्स आर, बहुत बड़ी वेडिंग शुरू में मत लो। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि छोड़ दो, अगर तुम्हें कोई बहुत बड़ी वेडिंग शुरू में मिल रही है तो get another wedding planner involved, figure out what your dynamics would be. Maybe they will take all the profits, but they will give you the opportunity to intern with them. या फिर maybe tell them that give me a portion of the wedding, चलो मैं आपका हल्दी कर देती हूँ। And like I wouldn't never say कि no करो business को, but figure out a way to be true to your clients. अपने client को कभी भी गलत expectations मत set करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टीम नहीं है फलाने कंट्री में, या तुम्हारे पास एक्सपर्टीज नहीं है किसी पर्टिकुलर वेडिंग स्टाइल में, तो उसको बहुत क्लियरली अपने क्लाइंट को बता, और फिर उसके बाद आप दोनों डिसाइड करो इफ इट इज समथिंग दैट यू कैन सर्व, योर क्लाइंट हैज टू बी कन्विंस कि जो आपके गैप्स है वो फिल कर सकते हैं, और यू हैव टू बी एबल टू कन्विंस योर क्लाइंट्स कि मेरे पास ये गैप्स है, but there are ways that I will be able to fill that, right? So I would say it is a very fulfilling, reward, very good career. It does require you to be away from your family quite a bit. It is very intense. चीज जो मैंने नहीं बोली, which is a given, is that you have to be able to deal with people. If you don't like dealing with people, then wedding planning is not for you. कितना जो है आपको स्ट्रेटेजिक रहना पड़ता है। You have to be able to talk to your vendors, you have to be able to talk to your clients, you have to be able to talk to their family, their extended family. हर वेडिंग में अगर आप बॉलीवुड मूवी देखते हो, आप देखते ही हो कि हर वेडिंग में कुछ ना कुछ तो होता ही है। आई डोंट नो ऑफ एनी वेडिंग जिसमें थोड़ा बहुत तमाशा नहीं हो, बट यू हैव टू बी एबल टू हैंडल इट, राइट? सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपका स्टाइल है, राइट? आई मे हैव अ वे ऑफ गेटिंग थ्रू माय क्लाइंट्स वेयर आई tend to be very, very friendly with my clients, but then also I protect myself with contracts because कुछ भी हो सकता है आगे चल के। I am very friendly to my clients, मगर again, I have my certain things non-negotiable. I have my milestones laid out जो मेरे client understand कर सकते हैं। Definitely, this is a very rewarding career. You should go for it if this is something you want to do. Please follow my channel, message me and tell me अगर कोई gaps है तो मैं उन पे वीडियो बना सकती हूँ। And I wish you all the very best.